Now I am starting chapter Evidences and Theories of Biological Evolution. Life on the primitive earth was produced by chemical evolution. Biological evolution has resulted in immense variety of organisms over the ages, showing variation in size, form and degree of complexity. तो इवोल्यूशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म. सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बनना इवोल्यूशन कहलाता है. फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बनना. एनिमल में देखें तो सबसे कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बीइंग, और प्लांट में देखें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है एडवांस्ड है फ्लावरिंग प्लांट्स. What are the evidences of organic evolution? The evidence of organic evolution derived from many lines of study indicate that the present day forms has arisen by gradual changes from pre-existing forms, and that more complex forms have been derived or evolved from simple forms. The evidences of evolution are largely drawn from paleontology, comparative morphology and anatomy, means external appearance and internal structure, embryology, cell biology, biochemistry, molecular biology and geographical distribution of organism. So now I am talking about evidence from paleontology. The relics of some former living life, plant or animals embedded in a dug out of the superficial deposit in past geological period is known as fossil. तो fossil क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल जो हज़ारों साल पहले ज़िंदा थे लेकिन बाद में अर्थ क्रस्ट में दब गए और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उनके फॉसिल बन गए. तो इनके या तो बॉडी के किसी पार्ट मिलते हैं या फिर इम्प्रेशंस मिलते हैं. And study of fossil is said to be paleontology. Fossils are mostly found in sedimentary rocks. The process of preservation of living beings or their part in the form of fossil is known as fossilization. This is continuing process. Fossil reflect the history of past and hence are true witness of evolution. Fossil not only provide an insight into the structure, traits and behavior of organisms but also the nature of the environment in that period. The utility of fossil, however, depends upon the degree of their preservation. Majority of the known fossils are imperfect and in most cases only external morphological features are preserved and cellular details are hardly visible. Usually perfectness of fossil depend upon the duration and intensity of destructive forces existed before or during the fossilization process. To explain the process of fossilization, two theories has been put forward. Number one, replacement theory investigates the fossilization takes place by the replacement of the molecules of origin substances of the organism one by the molecules of minerals in the soil solution. This replacement occur due to hydrolysis or weathering of organic substances present in the body. Several known fossils show such type of replacement. And second one is infiltration theory. According to infiltration theory, fossilization occurs as the result of infiltration and precipitation of minerals through the cell membrane. After burial, the plant or animal body undergo partial disintegration and the free carbon released in this process forms carbonate by reacting with infiltrated calcium, magnesium, etc. This process of fossilization depends on the disintegration of organic substances present in the cell. Geologic time scale cover the whole span of Earth history to correlate the events in proper sequence. The Earth crust consists of layer of rocks lying one on the top of the other. Radioactive dating technique have been revealed that the Earth is approximately 350 million years old. On the basis of time, the geological history of the Earth has been divided into 5 eras: Archaeozoic, Proterozoic, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. Each era includes several periods and each period is further divided into epoch. तो देख लेते हैं कौन कौन से एरा हैं, पीरियड्स हैं, उनमें कैसे प्लांट और एनिमल्स थे. नंबर वन इज़ सीनोजोइक एरा एंड उसका जो पहला पीरियड है वो है क्वाटनरी पीरियड. एपॉक होलोसीन 30,000 ईयर्स
और क्लाइमेटिक वेरिएशंस क्या हुए उस समय, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न क्लाइमेटिक रीजन, कोल्ड क्लाइमेट इन पोलर रीजन। प्लांट कौन से उस समय डोमिनेंट थे, हर्बेशियस प्लांट। डोमिनेंट एनिमल लाइफ, एज ऑफ मैन। इम्पॉर्टेंट इवेंट प्लांट लाइफ में जो हुए, डोमिनेंस ऑफ हर्बेशियस प्लांट। और जो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए एनिमल लाइफ में, मॉडर्न एनिमल्स, राइज ऑफ सिविलाइज्ड मैन। सीनोजोइक का जो दूसरा क्वार्टनरी का एपॉक है दैट इज़ प्लेस्टोसीन, 1 मिलियन ईयर्स। एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट इन एनिमल लाइफ, प्रिमिटिव मैन, एक्सटिंक्शन ऑफ सम ग्रेट मैमल्स। सीनोजोइक एरा का जो दूसरा पीरियड है दैट इज़ टर्शरी पीरियड। इसमें एपॉक पेलियोसीन, 17 मिलियन ईयर्स। डेवलपमेंट ऑफ एल्पाइन माउंटेन रेंज। डोमिनेंट प्लांट जो थे वो एंजियोस्पर्म थे। और एनिमल, एज ऑफ मैमल्स। स्प्रेड ऑफ हर्बेशियस डाइकोटिलिडन प्लांट्स। और जो मेन इंपॉर्टेंट एनिमल लाइफ में इवेंट था, इमर्जेंस ऑफ मैन, फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न मैमल्स। फिर टर्शरी पीरियड में ही नेक्स्ट है मायोसीन, 30 मिलियन ईयर्स। डेवलपमेंट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज, डिक्रीज इन नंबर एंड एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, फर्स्ट मैन लाइक एप फॉर्म्ड। और टर्शरी का ही जो नेक्स्ट है दैट इज़ ओलिगोसीन, 40 मिलियन ईयर्स। राइज इन नंबर ऑफ वुडी एंजियोस्पर्म, एक्सटिंक्शन ऑफ एरिकिक मैमल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है ईओसीन, 60 मिलियन ईयर्स। स्प्रेड ऑफ एंजियोस्पर्मिक फॉरेस्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। फिर पैलियोसीन इस एरा का लास्ट है सीनोजोइक एरा का, 80 मिलियन ईयर्स। राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट्स। फिर आता है मेसोजोइक एरा। फिर उसका पीरियड है क्रस्टेशियस, 110 मिलियन ईयर्स। फिर इसको डिवाइड किया गया है एपॉक अपर क्रस्टेशियस। इसमें जो वेरिएशन थे, लैरामाइड रिवॉल्यूशन, जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट थे। एज ऑफ रेप्टाइल्स थी, डोमिनेंस ऑफ एंजियोस्पर्म एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म। एंड एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन ऑफ रेप्टाइल फॉलोड बाय एक्सटिंक्शन ऑफ गैंट डायनासोर्स एंड टूथेड बर्ड, राइज ऑफ फर्स्ट मॉडर्न बर्ड्स। फिर उसके बाद क्रस्टेशियस में सेकंड है मिडिल क्रस्टेशियस। इसमें क्या हुआ, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म। फिर आए लोअर क्रस्टेशियस, डेवलपमेंट ऑफ साइकेडेस हुआ, कोनिफर्स एंड एंजियोस्पर्म। फिर जो सेकंड पीरियड है मेसोजोइक का वो है जुरासिक, 170 मिलियन ईयर्स। टेम्परेट क्लाइमेट था। राइज इन नंबर ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स, ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। राइज ऑफ टूथेड बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड डोमिनेंट। उस समय ये हो गए थे, रेप्टाइल्स डोमिनेंट हो गए थे। उसके बाद जो एरा आता है वो है पैलियोजोइक एरा, पीरियड ट्रायसिक, 200 मिलियन ईयर्स। वार्म टेम्परेट एंड क्लाइमेट था। और प्लांट कौन से थे, टेडोस्पर्म, सीड फर्न, प्रिमिटिव लैंड प्लांट एंड मोस्टली कैलकेरियस एल्गी। और ये एनिमल में एज ऑफ एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है, फिशेज एंड इन्वर्टिब्रेट्स थे। सीड फर्न बिकम एक्सटिंक्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइकेडेट्स, कोनिफर्स एंड जिंगोल्स। राइज ऑफ फर्स्ट डायनासोर एंड एग लेइंग मैमल्स, एक्सटिंक्शन ऑफ प्रिमिटिव एम्फीबियंस। फिर आया पर्मियन पीरियड पैलियोजोइक एरा में, 250 मिलियन ईयर्स। और ग्लेशिएशन हुआ था इस समय, एक्सटिंक्शन ऑफ प्राइमेट, जिम्नोस्पर्म एंड एब्रोसेंट टेडोफाइट्स, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी मैराइन इन्वर्टिब्रेट, राइज ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स, मॉडर्न इंसेक्ट एंड एमेनोटाइड्स। फिर आया पैलियोजोइक में कार्बोनीफेरस पीरियड, 280 मिलियन ईयर्स। एप्लेशियन रिवॉल्यूशन, डोमिनेंस ऑफ लाइकोपोड्स, ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड एनिमल में ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स एंड विंग इंसेक्ट्स। फिर नेक्स्ट डेवोनियन है, 360 मिलियन ईयर्स। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट था उस समय। ओरिजिन ऑफ लैंड वेस्कुलर प्लांट्स, एल्गल मेंबर इन प्लांटी एंड ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन फिशेज अबंडेंट। सिल्यूरियन पीरियड है नेक्स्ट, 375 मिलियन ईयर्स। वार्म क्लाइमेट, ओरिजिन ऑफ लैंड प्लांट, डोमिनेंस ऑफ एल्गी, ओरिजिन ऑफ जॉड फिशेज एंड विंगलेस इंसेक्ट्स। देन ऑर्डोविशियन period, 420 million years. Development of Calmodian ranges, dominance of marine and green algae, origin of jawless fishes. लास्ट इस एरा का पैलियोजोइक एरा का पीरियड है कैम्ब्रियन, 550 मिलियन ईयर्स। डेवलपमेंट ऑफ एकेडेन रॉकी रेंजेस, ओरिजिन ऑफ एल्गी, ऑल इनवर्टिब्रेट फाइला एस्टेब्लिश, ट्राइबोबाइट्स डोमिनेंस। फिर है नेक्स्ट एरा जो है प्रोटीरोजोइक, 1500 मिलियन ईयर्स। एरा ऑफ अर्ली लाइफ, प्री कैम्ब्रियन पीरियड, वार्म एंड एक्वेटिक कंडीशन, प्रॉब्ली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल मैराइन इनवर्टिब्रेट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया,
ओरिजिन ऑफ सिंपल मैराइन इंटरवर्टिब्रेट्स। और लास्ट एरा है आर्क्योजोइक, 3,800 मिलियन ईयर्स, एरा ऑफ डॉन ऑफ लाइफ, great volcanic activities. Organisms were probably very simple and unicellular. Origin of life, not recognizable fossils.